My percentile is 99.81 in CAT. A and B you don't have. Any specific reason for that? Like 99.81 you said. It was my gap year as well, so I was spending 6 to 7 hours. मैं वर्क एक्सपीरियंस वाला था तो 3 से 4 घंटे 3 घंटे था मेरा एवरेज, 4 घंटे तो कभी कभी होता था वर्किंग डे पे। तो अच्छा खासा वेल पेइंग जॉब छोड़ दिया था, तो अभी कैट तो निकालना ही था। Yeah, one thing I did was no geometry, no PNC. ज्योमेट्री पहले फर्स्ट राउंड में छोड़ देता था, बट फिर आता था नेक्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करने। I had an IIM Calcutta interview today, so they asked the general question about first why MBA and about my profile. मॉक्स कितना दिया था? मेरा भी सेम ही था, प्रैक्टिस। आई डिड ऑलमोस्ट 600 to 700 सेट्स। If you're getting 95 in mocks, I think you are almost headed towards 99 in CAT. Now, how can I reduce the time? Even if I am able to solve a question, how can I reduce 3 minutes to 2 minutes? So that was what I worked on. This is an episode with CAT 99 percentilers who are appearing for IIM interviews this year. We will be discussing about CAT preparation strategies, mock taking strategies, as well as some of the interview experiences that they have had. So for any future CAT aspirant, this podcast is going to be for you. Thank you Mokshesh, thank you Vishraj, thank you Pratik for doing this, taking out time, and thank you because you are directly coming from IIM Calcutta interview, Vishraj and Mokshesh. So we'll discuss on that as well. But before that, if you can just give a brief background, what exactly have you pursued so far? What's your percentile to our audience? So my graduation is in management studies. I am a fresher, 989 typically, so 10th, 12th and graduation. My percentile is 99.81 in CAT. Do I include SNAP and everything? No, we can. Yeah, you can just tell briefly about the scores as well. So the SNAP is 99.82, ZAT is 99.48, and NMAT is 283. Okay. With the calls that I'm Calcutta, Kozhikode, Lucknow, Indore, Mumbai, and the rest, the CAB, Shillong, those calls. NMIMS, SCMHRD, SIBM, SPJN, IFT, MDI. Okay, and A and B you don't have. I don't have A. Any specific reason for that? Like 99.81 you no. said. Okay, and the profile you mentioned was 989. 989. This is the 12th score. Otherwise, I don't see. And you're non-engineer, right? Non-engineer, yes. Okay. No, maybe fresher. That's why I did not get Bangalore. Probably. And maybe because of class 12, you slightly miss, I think, Ahmedabad. Otherwise, you should have made it. Possibly, that could be one reason. And Vishraj, you are? I've done my graduation in chemical engineering. I have a 3 years work as a scientific officer in Department of Atomic Energy. My CAT percentile was 99.23 and I've received call from ABC, LKI and IIT Bombay, Mumbai and CAP IIMs. Got it. And you, Pratik? Yes, so I'm Pratik Modi. I've done my BCom from Narsee Monjee College. I'm also a qualified chartered accountant and I have 15 months of work experience in Citibank. My CAT score was 99.46. My ZAT was 99.1 percentile. In terms of calls, I have almost all of them except ABC and Mumbai. So my best calls would be, let's say, ISB, XLRI, and I'm Lucknow so far. Got it. And what all interviews you have had so far? With me, the interviews currently, so Calcutta, Lucknow, Kozhikode, Shillong, Raipur, SPJN, NMIMS, SCMHRD and SIBM. Okay. All of these. So let's discuss one of them. We'll come to CAT preparation, but since you're just coming from the IIM Calcutta interview just today itself, so it's fresh in your mind. What questions did they ask? So they started to tell me about yourself. That was pretty much in my favor. I would explain about myself majorly. Then a large chunk was about my business. So I have a family business and major chunk went into that. Then they started going all over the place. So there was a section where we were discussing current affairs. They asked me what's going on in the news today. And they're looking at multiple papers. So first they asked me about Economic Times. I answered that. Then we're looking at Hindu. With Hindu, they just caught up one news. Something about the Microsoft merger on one chip. And then once they caught onto that, they just went straight into AI. Then they were asking about what is AI, what is the difference between AI and automation. So they're into definition. I had no clue about that. That is a little stuck. And then they went to maths. So probability is something they asked. Luckily, you remember kya question tha? The question was in a non-leap year, what is the probability of having 53 Mondays?
Okay, I the think a very audience standard can- question. Yeah, very standard. The audience can calculate that, comment the answer later. So that was kind of the flow of Yeah, interview. kind of. For you, you have also had IIM Calcutta yes. interview today itself, right? Yes, so Yeah. I had an IIM Calcutta interview today. So they asked the general question about first why MBA and about my profile. Then they asked about, since I'm working in the Department of Atomic Energy, they asked about the news related to Modi and Trump meeting in general and what the government plans to expand the nuclear sector. After that, they asked a bit about mathematics. So they asked me whether I was comfortable in calculus or not, to which I replied yes. So they asked two questions from calculus. One was the maximization question and another was an integration which they asked. क्या था integration? Integration was root over of 25 minus x square, the whole under root and dx. अच्छा ठीक है बाद में करते हैं, इसको लिख के करना पड़ेगा. बट ऑडियंस कर सकता है. whoever is an engineer probably or an engineer probably, that's Yes. why the integration में गए. Latest interview, what was your latest interview that you had? Among the good ones, I think IIM Kozhikode was the latest अच्छा one. कैसा था वो? Yeah, it was good. It was great. So half the interview was about my work ex, what I'm doing and everything about that. Then the other professor took over. He was asking me a lot of puzzles, very interesting puzzles. Puzzles? Yeah. You remember क्या? Yeah, I remember. So he asked me how many times can you subtract 10 from 100. So I answered once. And he was like, how can you do that? So I said, you can only subtract it once. Once you do it, it becomes 90. So Okay. yeah, so that was the right answer. So he was surprised. Then the next one was how many months have 28 days in them. So I told him all 12 months. So he's asking me why. So I said, sir, all months are 28 days. Some months are more than 28 days. So Okay. that's when the first panelist, he starts laughing. He burst into laughter. Then he's asking about probability as well. What are your chances of this PI being a success or a failure? He asked me about what is conditional probability, what is joint probability. So a bit of probability based questions as well. Got it. तो ये puzzles तो काफी जो WhatsApp puzzles आते हैं ना उस टाइप के चले गए थे. You specifically mentioned क्या puzzles? No, मैं no. नहीं, because I had mentioned puzzles and I enjoy solving puzzles in this, इसलिए मेरे questions थोड़े puzzles में गए थे. But ये ऐसे puzzles नहीं थे, थोड़ा different kind of puzzles थे, थोड़े mathematical वाले puzzles. ये थोड़े WhatsApp puzzles होते हैं ना. I think I'm keen, थोड़ा I think is known for doing these things. ठीक है, तो ये डिटेल्स में आएंगे. इंटरव्यू प्रेप मतलब क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, बिकॉज आई एम श्योर यू हैव हैड अ लॉट ऑफ इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस सो फार. बट उससे पहले कैट प्रेपरेशन में आते हैं, लाइक स्टेप बाय स्टेप जाते हैं. कैट प्रेपरेशन, देन इंटरव्यू प्रेपरेशन, देन इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटाइल जब आया था, रिएक्शन कैसा था? Expected था. So it was my second attempt to CAT. I was pretty sure. Last year I had a 97. I said I want to take admission. I'll write again. So I was expecting somewhere in the range like 99.5. I was expecting. The aim was 99.7 because general saying until last year was 99.7 पे अहमदाबाद का कॉल आ जाएगा. At least for a non-engineer. राइट. तो जनरल सेइंग तो ये था. I was like 99.7 टारगेट करके चलते हैं. सो प्रीटी आई वाज इन सम फंक्शन जब रिजल्ट खोला था. फ्रेंड को बोला भाई कैलकुलेट कर, ये स्कोर शीट आता है ना. राइट, पहले आंसर किया आएगा. या pretty happy with that. Target was met, so yeah. ठीक है. एंड योर केस कैसा था रिएक्शन? तो पहले जैसे एग्जाम हुआ था तो उस समय वर्बल का स्कोर मोस्टली अनप्रिडिक्टेबल होता है, उस समय बोल नहीं सकते. हाँ, वो नहीं तो बोल तब तक तो कुछ पता नहीं था. बाद में स्कोर कार्ड आया, फिर स्कोर कैलकुलेटर तो समवेयर बिटवीन 99 टू 99.5 प्रिडिक्ट कर रहे थे मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन वेबसाइट. तो उस समय रिएक्शन था कि यहाँ इस समय मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था. मतलब कि एक्सपेक्टेड था कि अब स्कोर जो है अच्छा आ जाएगा और कॉल्स भी उसके हिसाब से एक्सपेक्टेड थी. एंड योर केस? Again, I was a repeater, so I had 95 in the last attempt as well. So again, I was targeting a 99. So DLR, I knew I was able to solve 3 sets, so I knew I was getting a good score. Quants also, I was able to solve 12-13 questions, so I knew I was going to get a good score. Verbal was, again, I was expecting 20 marks, I got 37 or 38 marks. So I think that shifted me from 98 to 99.46. राइट. आई थिंक So- आंसर की आ जाते हैं तो परसेंटाइल Answer का की- एक्सपेक्टेशन अब yeah, आजकल आ clean जाता है. हो जाता है. बिकॉज मुझे याद है लाइक आंसर की आया था वर्बल, एज यू सेड वर्बल का पता नहीं होता है कितने क्वेश्चन हैं. मैं जब आया था आंसर की मेरा, मैं ऑफिस में बैठा था एंड देन आई जस्ट टोल्ड पीपल कि मैं आता हूँ. आंसर की आ गया था इन बिटवीन. आई जस्ट वेंट टू द गेम्स रूम. फिर वर्बल का क्वांट एंड एलआरडी है तो ठीक है, पता भी था कितना आने वाले हैं. वर्बल के लिए मैं लाइक लिटरली एक एक क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ एंड
my hands like shaking कि यार इस बार गलत नहीं हो जाए, इस बार गलत नहीं हो जाए, because some of the predictors जो थे मतलब जितने भी ऑनलाइन जो आंसर किया आया था वो काफ़ी डिफरेंट था, Yeah. and I was getting तब 102 मार्क्स का होता था verbal, I was getting around 50-60 according to them, but जब CAT का आया I got 80. So every question I'm like shaking कि यार क्या होने वाला है next question. Even for my case, when the response sheet came out, the calculator that the Krakow and those have, it was not online. So I put Excel. I made an Excel. 3 marks, 0, -1, 3. I calculated manually. Yeah. And when the final it came out to 106, I was this is good. I'll get a good percentile this time. So when did you start your preparation? So for my second attempt, I started. The first year में बता दो क्योंकि first year I think is more relevant Okay. for this question. So I started pretty early. So I was involved in a lot of things in college. Exams time I used to not study. December and Jan is like college festivals time hota hai. So I totally studied nothing. 12 hours I'm out of home. So considering that, I started in September. So for CAT 23, I started September 22. Okay, got it. Almost like more than More a than year. a year, yeah. Okay, and your case? For previous attempt, I was not serious about taking the CAT, but this attempt I made up my mind in May, so I started preparing from May month onwards. So it's around 6.5-7 months. Okay, and in your case? Previous attempt started from March onwards. This attempt I started July onwards. Okay, March of basically the year that you are going to Of attempt taking the CAT, CAT, March. yes. So again almost 7 months Yes. जैसा रहेगा Yes. वहाँ उस पे भी. ठीक है तो the thing is कि for especially for you too, last year से क्या different गया है? Anything which you thought that मैं different कर रहा हूँ इस बार? Because 97 to 99 you had a journey from 95 to 99. So anything different you did? ऐसा कुछ है दिमाग में? One thing that was different was a specific focus on VRC. So even last year I had a 99.67 in quants. So that is not where the problem was. With DILR I solved one set. The second set I messed up. I did solve it, but somehow I did not missed one probability and it just went wrong for me. So I knew that DILR भी निकल जाएगा. The problem was VRC मेरा sectional भी नहीं निकला था. I was at 67 percentile last time. So then I like for 8 months straight I have written a sectional every day. For verbal. 6 days a week, 8 months straight. Got I think फिर I was pretty confident. Right. Still there was shaking कि result आया तब भाई क्या आएगा. But confidence तो था. Verbal पे you can't be sure मतलब last moment तक what's going to happen. And in your case, anything different? So I think it was more of a mental game that changed, because last year I was doing well in mocks as well, but when the exam came, the paper was very difficult. So that messed up my mind a bit, and then all the sections went badly, which is why I got a low score. This year I was more conscious about like mentally I have to be strong. So I think that was the difference between the last year and this year. Got it. Because इसलिए मेरे काफ़ी डिफिकल्ट होता है ये चीज़ बोलना, बिकॉज आई ऑल्सो अटेम्प्टेड कैट ट्वाइस एंड बोथ टाइम्स ही मेरा 99 था, लेकिन द आइडिया वाज कि डिफरेंस कैसे लाऊं. बेसिकली मुझे नहीं लगा कि कोई डिफरेंस था प्रेपरेशन में, जस्ट दैट मॉक्स ज़्यादा दे दिए, दैट वाज द ओनली थिंग दैट आई कुड डू. So मतलब my percentile last year was 99.21 where I did not go for an MBA college, and उसके बाद उससे ऊपर जाना it's just depends on the day. मैं सोच रहा था कि और percentile अगर day अच्छा रहेगा I'll get that percentile, अगर day अच्छा नहीं रहेगा maybe it will be the same one. And coming back to preparation, how many hours you were committing probably this year and last year, anything? So I'll talk about on my an second. average, because obviously I know every day won't I'll be the talk same. about my second and it was more structured, it was more serious. That was 8 hours a day. 8 hours a 8 day. hours a day. That's I don't want to take pretty any much. chance, no risk at all. So it was your second gap attempt year. लिया है. Yeah, it was my gap year. Okay, that's and that was 8 hours a day for CAT. It's like definitely you're going Commitment उठाया था कि 97 पे नहीं लिया है कुछ. Right. अब प्रूव करना है कि मैं डिसीजन सही था, वरना फिर घर वाले बोलेंगे. Yeah, right. In your case, तो every day? You're मेरे working. केस में मेरे केस में ऐसा था कि मैं वर्क एक्सपीरियंस वाला था, तो 3 से 4 घंटे 3 घंटे था मेरा एवरेज. 4 घंटे तो कभी कभी होता था वर्किंग डे पे, तो और नॉन वर्किंग डे पे 6 आवर्स पुश कर लेता था. और मुझे आई हैड अ मेन प्रॉब्लम इन स्पेशली इन DILR, क्योंकि क्वांट्स तो मैं काफ़ी कंफर्टेबल था, लग रहा था कि इसमें 99 आ जाएगा, बस मोस्टली सारे फॉर्मूलेज और थियरम्स देखने हैं. और वर्बल एबिलिटी मतलब गारंटी नहीं थी, लेकिन आई वॉज एबल टू रीड एंड अटेम्प्ट ऑलमोस्ट 3 पैसेजेस एंड एंटायर वर्बल सेक्शन इन द गिवन टाइम. तो उसका मतलब ये था कि एक्यूरेसी इंप्रूव करनी थी, लेकिन मेन था मुझे चैलेंज DILR में था कि मैं सेट सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ. तो मोस्टली इट वॉज फोकस्ड एवरी डे सॉल्विंग अ सेट विच वुड टेक अराउंड नियरली हाफ एन आवर टू 1 आवर.
Okay, and to then solve a later difficult maybe set. you would have improved because half an hour say maybe you have to fit it in 10 minutes maybe. हाँ 10 minutes, स्पेशली 15 minutes मॉक्स का max. एनालिसिस में काफी टाइम जाता था हाँ, DLR में definitely. If you are Mostly giving एक a घंटा 2-hour mock, you should be spending at least 2 hours, 2-3 hours in the analysis. at क्वांट तो least. जल्दी हो जाता था एनालाइज करके क्योंकि कुछ ही सवाल जो नहीं होते थे फॉर्मूला देख के हो Right. जाता लेकिन DLR में पूरा सेट समझना पड़ता Exactly. था बैठ के खुद से पहले अटेम्प्ट पढ़ना पड़ता था उसके बाद जब नहीं हो रहा है तब जाके सोल्यूशन देख के समझना था Right. तो वो थोड़ा लेंदी था मेरे केस Got it. In your case, It was my gap year as well, so I was spending 6 to 7 hours. 6 to 7 hours for almost from, if you're saying from July, so 4 months, last 4 and a 4-5 half months months. you Yeah, keep yeah, 6 hours. Yeah. So pretty much because obviously CAT preparation जब मतलब करता in my first attempt I was definitely giving a lot more time, maybe 5-6 hours दे रहा था. In my second attempt I think work was hectic, बहुत ज़्यादा hectic था office, तो I think it was 2-3 hours होते थे and weekends में just like him I used to push मतलब 6-7 hours push कर देता था. Other than that I think weekdays में थोड़े कम ही रहते थे and I think preparation थी पहले से. हाँ, तो मेरा that ऑपोजिट था. फर्स्ट अटेम्प्ट में 2-3 hours ही था. अच्छा. सेकेंड अटेम्प्ट में 6-7 hours था बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट में आई वाज वर्किंग. सेकेंड अटेम्प्ट में आई It was लेफ्ट a माय gap जॉब year. एंड आई टुक अ गैप. सेम केस विद मी लेकिन माय First फर्स्ट attempt was less. अटेम्प्ट मॉर्निंग तो कॉलेज में जाता था. आई वाज प्रीटी मतलब वेरी एक्टिव इन कॉलेज, सो मैं घर ही 4 बजे आता था. Okay. उसके बाद जो टाइम बचा टू स्टडी. नॉट दैट आई वाजंट कॉन्फिडेंट, नॉट दैट आई डिड नॉट राइट इनफ मॉक्स, बट अगेन जस्ट लेट्स से डे नहीं था तो वीआर से बहुत गंदा ब्लेंडर हो गया. हाँ, right. और वीकडेज में तो वही है कि समय मिलता ही नहीं 9 घंटे कम से कम तो आपके Right. ऑफिस अगर और ट्रैवलिंग पकड़ के work जाएगा experience है तो 8 घंटा मान ले एवरेज नहीं, सोते हो नहीं। 7-8 घंटे तो बचता है 2-3 घंटे को डेली चोर्स भी Right. अपना रहता है हाँ, पूरा। exactly. And I think खाना, sufficient पीना, होते वो हैं. It's not that obviously if you want to play it safe, give maximum time जितना possible हो. But there are many examples. 2-3 hours every day. Structured way Main में है preparation किया. consistency जो आप बोल रहे हैं Yeah, एवरी डे exactly. जो है Every day 2-3 hours that करते रहो. matters. Structured way में I think हो जाते हैं. कितना mocks कितना दिया था? Like अगर याद हो on an average. मैंने तो अपर एंड सिर्फ सेकेंड अटेम्प्ट का बताता हूँ. सो शी राइट अ मॉक एवरी सेकेंड डे, Oh my 3 god. mocks a week. That was roughly 50 से 60 मॉक सेकेंड अटेम्प्ट में लिखा था. 50 that makes sense. In your case? मैंने टोटल अराउंड 27 to 30 दिया था. इनिशियली 1 वीक पे दे रहा था लेकिन लास्ट 2 months बिफोर कैट आई वाज गिविंग अराउंड 2 mocks per week. Okay. And your case? Around 50 mocks. 20-25 would be previous year papers and 25 would be I think mocks. Okay, 25 Previous year papers. papers. Okay. And हाँ मतलब उतना ही है. मेरा भी केस में I think it is 35 mocks ऐसा दिया था. So I think pretty similar. वो range I think रहता था पर 25 to 50. Okay, अब individual strategies में आते हैं sections के. एक सेक्शन पिकअप करते हैं and let's discuss how did you go about those sections. ठीक है, verbal से start करते हैं. Verbal कैसे start किया था? Verbal, I started with Aeon. So one reason I could not score was my understanding about the passage was weak, and that was not because I was very good at spoken English, so I did not understand where I'm going wrong. I could speak well, I could read well, Right. but I hated reading books. I've never read anything in my entire life in English. So Aeon was something that I had to read. 3 months down the line, understanding improved a lot. Second thing I learned was पूरा पैसेज नहीं समझना है, मेन आइडिया समझो, हर पैराग्राफ क्यों लिखा है वो समझो, एंड उससे पैसेज सॉल्व हो जाएगा. Right. एंड देन फिर टाइम इम्प्रूव किया था बिकॉज आई कुड नॉट फिट इन एवरीथिंग. सो बाय द एंड आई रियलाइज्ड 24 क्वेश्चन मुझसे नहीं होने वाले, 4 VA एंड 4 RC, 20 क्वेश्चन ही टारगेट करना है. ओके helped मतलब for me. हाँ ऑब्वियसली द थिंग दैट यू आर मेंशनिंग कि इंग्लिश अच्छा है. काफ़ी लोग सोचते हैं कि मेरा इंग्लिश अच्छा है, आई विल डू गुड इन वर्बल. सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है बिकॉज verbal is actually more about critical thinking and passage obviously comprehension and reading ability ये सब important है. But the idea is कि it's not about just English. Critical thinking वो अच्छा, why does the author think this? What is the main idea of the passage? You can comprehend the passage but ultimately critical thinking करना पड़ेगा, and that comes from sectionals that you were obviously attempted a lot as well. And in your case, verbal का कोई In my अलग case, strategy? my reading speed was pretty average. Means it was above average actually. I tried to read Aeon essays, but समझ में नहीं आता था, बड़ा लगता था. मैंने भी नहीं पढ़ा था वैसे honest. मैं हिंदू के एडिटोरियल्स पढ़ता था. कोशिश की थी 1-2 पढ़ने की लेकिन फिर नहीं पढ़ पाया. हाँ लेकिन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स में थोड़ा बहुत रेगुलर था, ऑलमोस्ट रेगुलर था. इंडियन एक्सप्रेस के और द हिंदू के एडिटोरियल्स तो मैं पढ़ता ही था. एक पेपर ऑन 1 डे, मतलब दोनों एक साथ नहीं, मतलब कोई I भी got जो it. भी मिले वैसे. And sectionals ये हाँ सब थे. फिर बाद में जैसे सेक्शनल अटेम्प्ट किया था तो धीरे धीरे पता चला, एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ी मुझे कि 24 क्वेश्चंस का पूरा तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा उतने टाइम में, क्योंकि अगर पढ़ भी लूंगा तो मेरी कॉम्प्रिहेंशन खराब हो रही थी. मतलब मैं चीज़ें समझ नहीं पा रहा था. जैसे आपने बोला कि क्रिटिकल थिंकिंग इज मच मोर इम्पॉर्टेंट हियर.
So I'm not able to develop a critical thinking to answer the questions if I try to read much in a very less time. So I decided to limit my attempts to 16 to 20 questions. So 3 passages and जितने भी verbal ability के question होते हैं सब done कर देंगे. तो था जिसमें मैं 16-20 attempts is हाँ, nice. which increased my comprehension rate and improved my accuracy also. So that helped me in the verbal Makes section. sense. And in your case, verbal? Verbal में तो I think ever since my childhood I've been reading a lot newspapers, editorials. So It will help. verbal was not an issue for me. I was already scoring 30, 35, 40 के around. So it was not a concern for me as such. So The only section. thing was practice was one thing that I did, and the other thing was increasing my speed. So earlier I used to do around 3 RCs and some VA questions, but this time I was sure I had to attempt the entire paper 24 and 24, and I was able to complete all the questions. I think in 37 minutes. I even had 3 minutes left at the end. I was like, what to do now? Yeah, it happens with a lot of people, especially in the verbal section कि paper complete हो जाते हैं. And that's a good strategy. मतलब उस time को मत देखो कि अच्छा So I slow was down मत करो. focusing on volume, सब attempt करो. Even if you get same 60-70%, you will still get a good score. So that was my strategy. That's the same strategy I had. Like no matter what, I knew मेरे time 34 questions होते थे. So 34 questions मुझे पता था 32 तो minimum attempt करने हैं. If possible, most of the exam I will attempt 34 because मुझे accuracy पे भरोसा नहीं था verbal का. So मैं attempts increase करता था कि अगर उस पे 70% भी accuracy हो, I'll still get a very good percentile. That was my strategy. चलो next में जाते हैं DILR. DILR कैसे किया? DILR मतलब स्टडिंग तो एक ही पैटर्न था, मतलब सिंस आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम. सो डेली के मैं 6 सेट निकालता था. यही थॉट था इतने सेट सॉल्व कर लो कि पेपर में वही आए. एंड इट हैपेंड विथ मी. मतलब 2 सेट तो मैंने जैसे किए थे, नंबर्स बदल लिए, नेट तो वही होता था. बस एक लिमिट होता है कि कितने सेट बनाएंगे. सो दैट इज व्हाट वर्कड. 6 सेट्स अ डे, सो टू मच कंटेंट. हाँ मतलब ऑब्वियस 6 सेट्स पर डे इज बहुत ज़्यादा है डेफिनेटली, बट हाँ इट डेफिनेटली हेल्प्स. इस साल आई थिंक मे भी हो सकता है वो थोड़े मतलब रिपीट भी सिमिलर टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट रिपीट हुए हो. आई थिंक अगर कैट 23 होता you would not have got those sets anyway. कैट 23 में स्लॉट 2 में भी 2 सेट वैसे ही थे आए थे. दैट वाज माय स्लॉट. अच्छा. एंड आई मेस्ड अप वन क्वेश्चन, आई मेस्ड अप वन स्लॉट. तब फिर घर जाके मैंने जब ये सॉल्व किया तब पता चला ये तो पहले पूछा हुआ है. अच्छा. क्योंकि कैट 23 में काफ़ी इनोवेटिव सेट्स आए थे. इस साल थोड़े मतलब सेम पैटर्न से भी आए थे. कैट 23 बहुत डिफिकल्ट था जनरली. हाँ. एंड इन योर केस कैट 23 अटेम्प्ट किया था तो DLR में उस समय एक भी सेट नहीं बना था क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए गया था. लेकिन एक डिफिकल्टी का लेवल था कि पता था कि यार 2 सेट ही बन पाते खुद से, और 2 सेट ऐसे होते कि मतलब सोल्यूशन देखना पड़ रहा है, खुद से तो नहीं बन रहे. और मॉक टेस्ट में भी मोस्टली यही हो रहा था कि मोस्टली तो मैं मॉक्स पे ही फोकस कर रहा था. जैसे वर्बल हुआ और DLR हुआ, इस पर भी मैं मॉक्स के ही हिसाब से एनालाइज कर रहा था. तो मॉक्स में कई बार ऐसा होता था कि जो सेट में मॉक में नहीं बना पा रहा हूँ 40 मिनट में, उसको बाद में मैं बड़े आराम से बना पा रहा था. तो ये एक इशू था, परसिस्टेंट था, मेरे एंड तक था. तो सबसे पहले तो मैंने सारे सेट लगा दिए थे 2018 के बाद DLR के. और मॉक्स के भी जितने 30 मॉक्स रफली दिए थे मैंने अपार्ट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. सो उसके मैंने जितने भी सेट्स थे ऑलमोस्ट सारे सेट सॉल्व किए थे. ओके. मतलब मेन स्ट्रैटेजी प्रैक्टिस ही था फॉर बोथ ऑफ यू. आई थिंक मेन स्ट्रैटेजी प्रैक्टिस ही था. हाँ, और इसमें एक और चीज़ है कि डायरेक्ट सोल्यूशन देखने से भी फायदा नहीं, क्योंकि आपकी थिंकिंग इंप्रूव नहीं होती. आपको पहले खुद से अटेम्प्ट करना है. जब तक पूरी तरह फंस नहीं जाते हो या कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है तब आप सोल्यूशन रेफर करो. डेफिनेटली. मतलब एटलीस्ट एक सेट 30 मिनट्स 35 मिनट्स दे दो इनिशियल स्टेजेस में. एटलीस्ट 30-35 मिनट्स दे दो जब तक वो लगता है नहीं कि एकदम ब्लॉक हो चुका है, मतलब देयर इज नो वे आउट. उसके बाद हाथ पैर मारते रहो, उसके बाद छोड़ो. दैट्स फंडामेंटली. अदरवाइज काफ़ी लोग होते हैं जो अच्छा 15 मिनट्स हो गया, मुझे तो सेट सॉल्व करना था 15 मिनट्स में, नहीं किया मैंने, अब देख लेता हूँ सोल्यूशन. इट डजंट हेल्प. दैट विल नेवर इम्प्रूव योर थिंकिंग एबिलिटी. सोल्यूशन देख के तो जल्दी समझ में आता है, फायदा कुछ होता नहीं है. हाँ, नेक्स्ट जब नया सेट आएगा, नेक्स्ट जब नया सेट आएगा यू वोंट बी एबल टू डू. सो बेसिकली मुझे लगता है DLR इज अ बिट अबाउट ट्रेनिंग योर माइंड एज वेल. इसलिए मैं हमेशा जब भी किसी को जो स्टार्ट करे जस्ट प्रेपरेशन, उनको सजेस्ट करता हूँ सुडोकू से स्टार्ट करो. मतलब इट्स हैज नो रेलेवेंस, बट द आइडिया इज कि आपका माइंड ट्रेन हो रहा है. जो मैट्रिक्स के क्वेश्चंस होते हैं ना, अल्टीमेटली सुडोकू से अगर कोई जानता है ठीक से करना, बहुत फेमिलियर है, प्रॉब्ली इट बिकम्स वेरी इजी फॉर देम. जस्ट माइंड ट्रेन हो रहा है, दैट्स नथिंग एल्स. एंड इन योर केस DLR मेरा भी सेम ही था. प्रैक्टिस. आई डिड ऑलमोस्ट 600 to 700 सेट्स, like free available resources on the internet itself. Again, पहले I started with just trying to crack a problem. Like it takes 30 minutes, 40 minutes. I'll try and I'll try and solve this. Then I started putting a timer. I put
25 minutes. I went down to 20 minutes. I went down to 15 minutes. So because I knew if I do 2 sets in the CAT, I should be getting a 99 percentile. But this year was googly, and you know you need to do 3 sets to get 99 percentile. And I was able to do 3 sets. But I think eventually I was able to solve the sets, and within 10 minutes as well. 10-15 minutes was the time that I was going for. Yeah, I think pretty much like if you are well prepared, I think वो अगर pattern कैसे भी change हो, I think you will be able to manage. 2 sets में आते थे, but 3 करना है तो कर लो अगर well prepared हो तो. And finally, quant. Quants, so I not have to study much for quants. Honestly, I've been good at quants. Like I wrote a 0 prep पे, I wrote a mock. My score was 24 तब, and that was a CAT 22 paper, I think. So I was more or less okay with it. I had to just solve a little. I had a formula book, so YouTube there are videos available. Just watch the videos, make a formula book. Yeah, one thing I did was no geometry, no PNC. अच्छा, you did not cover No those geometry, topics. no PNC, till date कुछ नहीं आता. Arithmetic numbers algebra पे पूरा पेपर निकाला है. और दोनों साल अलजेब्रा पे तो हो ही जाता है, बट या और दोनों साल मतलब लास्ट ईयर तो 99.67 था सिर्फ एरिथमेटिक और अलजेब्रा पे. हाँ हाँ आई थिंक निकल जाएगा. ना निकल जाता है, बट वही है, मैं जब टाइम है किसी के पास प्रिपरेशन में, मैं बोलता हूँ कि वाई टू स्किप अ टॉपिक. मैंने किया ज्योमेट्री. हाँ, मैंने ज्योमेट्री बेसिक्स नहीं पूरा, मेरे पास टाइम था ना. मैंने ज्योमेट्री किया 2.5 महीना डाल के, फिर उसके सारे टॉपिक टेस्ट लिखे, फिर उसको मॉक में अटेम्प्ट किया, और फिर स्कोर कम हो रहा है. हाँ, इस ज्योमेट्री में टाइम ज़्यादा लग रहा है. प्रिपेयर्ड मतलब उस टॉपिक में ना प्रिपेयर किया, बट फिर कभी रिवाइज नहीं किया. हाफ वे डिसाइड कर लिया कि इससे स्कोर कम होने वाला है, टाइम ज़्यादा लगेगा. मेक सेंस. मतलब मैं इसलिए बोल देता हूँ कि अगर बहुत टाइम है प्रिपेयर करके रखो. ऑब्वियसली अगर कम टाइम है मैं तब बोलता है अलजेब्रा एंड अरिथमेटिक ऑब्वियसली आर द 2 मेन टॉपिक्स यू हैव टू डू, बट सब प्रिपेयर करके रखो. यू नेवर नो, मतलब अगर बहुत खराब लग रहा अरिथमेटिक अलजेब्रा के क्वेश्चंस तो आए बट बहुत डिफिकल्ट कर दिया, एंड ज्योमेट्री के क्वेश्चंस ईजी कर दिए, तो यार एटलीस्ट यू हैव बेसिक प्रिपरेशन, विच आई थिंक यू हैड एज वेल, सो वो भी सेफ था. इन योर केस एनीथिंग डिफरेंट? मेरे केस में तो इंजीनियर होने की वजह से क्वांट वाज Easy. आई वाज क्वाइट कंफर्टेबल विद क्वांट्स. द मेन इशू वाज आई हैड टू कवर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ईच एंड एवरी टॉपिक विद इन द क्वांट्स, बिकॉज इफ by chance the easy question comes and I have not studied that topic, it would be an unnecessary loss. Yes, तो स्फीयर की वजह से मैंने सब कुछ पढ़ लिया था, जितने भी टॉपिक हो सके. एक आध टॉपिक रिवाइज करना रह गया था, जिसकी वजह से मैंने एक आध आसान क्वेश्चन नहीं बना पाया एक्चुअल क्वांट में, लेकिन ओवरऑल मैं क्वांट में काफ़ी कंफर्टेबल था और सबसे ज़्यादा उसी में आया है परसेंटाइल. ओके, एंड कोई स्पेसिफिक बुक्स फॉलो किया था क्या? नहीं, क्वांट के लिए क्वांट्स के लिए नहीं. नहीं रादर मेरा थोड़ा इससे वियर्ड स्ट्रैटेजी था. सो इनका जो फियर होता है ना कि इजी क्वेश्चन निकल गया, तो मेरा उल्टा फियर था. इजी क्वेश्चन लगा और इस पर टाइम डाल दिया, तो डायग्राम देखा, ज्योमेट्री देखा, मैं क्वेश्चन छोड़ देता था. राइट, देखा ही नहीं क्वेश्चन, इवन इन कैट, द एक्चुअल कैट. मेरा भी वैसे ही रहता था कि मैं ज्योमेट्री पहले फर्स्ट राउंड में छोड़ देता था, बट फिर आता था नेक्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करने. एंड इन योर केस यू आर So again I was a repeater, so concepts तो already सब पता ही था. हाँ, तो नहीं फर्स्ट टाइम में कैसे प्रिपेयर किया था, याद है? So coaching के जो material था I went through that and mocks दिए, so that was it. So second time when I gave concept book already बना के रखा था, so I just went through all the concepts and I started solving. The issue wasn't not being able to solve the sums, the issue was being able to solve the sum in 2 minutes. Right. हाँ, so it was an optimization problem. So again I focus a lot on what tricks I can use. How can I reduce the time? Even if I am able to solve a question, how can I reduce 3 minutes to 2 minutes? So that was what I worked on. तो मतलब वही लाइक एग्जाम स्ट्रैटेजी बेसिकली जो होता है, क्योंकि ठीक है प्रिपरेशन एक पार्ट होता है, बट अटेम्प्टिंग द सेम क्वेश्चंस इन द एग्जाम, that's something it's a different ball game, so that's why you have to get prepared for that as well. And quant is the most predictable section, मतलब आपको Exactly. फॉर्मूला आता है, आपको तरीका पता है, आप श्योर हो कि यही आंसर है, unless there is some hidden trick और बस सारे क्वेश्चन में नहीं होता, very कम क्वेश्चन. अगर सॉल्व हो गया है, ऑप्शन मैच हो गया, इट्स प्रोबब्ली दैट यस ये करेक्ट है. वर्बल में वो केस नहीं होता है, डीएलआर में आल्सो टू एन एक्सटेंट हो जाते हैं, इट्स फाइन, बट क्वांट में तो यू आर वेरी सर्टेन कि अच्छा ये मैंने सॉल्व कर लिया. रिजल्ट्स आ जाते हैं, जैसे आप प्रिपेयर करते हो, ज्यादा सीखते हो, उसके हिसाब से मॉक्स में स्कोर भी बढ़ते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट कर पाते हैं, राइट, कंपेयर टू वीआरसी एंड डीएलआर. एंड किसी ने भी लेकिन कोई स्पेसिफिक बुक फॉलो नहीं किया, जस्ट मतलब कोचिंग मटेरियल बेट, एंड मे बी यूट्यूब पे अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो तो देख लिया होगा, या फिर कुछ फ्री रिसोर्सेज हैं होंगे. Previous concepts questions के are लिए more तो than YouTube enough. channels है. हाँ, So I had a few fixed YouTube channels वही. उसमें वो देखने के लिए. Previous questions are more than enough. So 2017 onwards मैंने सब previous questions कर लिए थे, all the slots, everything. So everything is covered almost.
if you अच्छा। take 25 previous year प्रीवियस ईयर की जो सॉल्यूशंस भी है यूट्यूब पे काफ़ी विद इन Hmm. 60 सेकेंड्स एंड ऑल दोस चैलेंजेस एंड ऑल, तो वो सब भी रेगुलर शॉर्ट्स देखता रहता था मैं, तो उससे काफ़ी छोटे छोटे मेथड्स फटाफट पता चल जाते थे बैठे बैठे. सो जब प्रिपरेशन कर रहे थे मॉक्स में कभी कभी होता होगा ऑब्वियसली लो स्कोर्स आते होंगे राइट. सो क्या रहता था मतलब डिमोटिवेशन होता था तो कैसे खुद को बोलते थे कि नहीं नेक्स्ट के लिए करना है, मोटिवेट कैसे होते थे बेसिकली ड्यूरिंग द प्रोसेस. इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट तब यूजुअली इतने लो स्कोर्स देखे नहीं. VRC में कभी कभी हो जाता था, बट देन तब खुद को ये बैक करते थे कि बाकी मॉक में अच्छे भी था. कैट तो लिखना है, पैसा तो भर दिया, तो भी लिखना तो है ही, तो फिर लिख के देखते हैं क्या होता है. विथ माई सेकेंड अटेम्प्ट मेरे साथ थोड़े से एक्सट्रीम केसेस हुए थे, लेकिन माई 8 month जर्नी 5 month आफ्टर प्रिपरेशन VARC का एक मॉक अरे पूरा मॉक था टोटल, उसमें VRC का मेरा स्कोर था -6. ओके. एंड दैट इज़ वेरी टेरिबल बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग 99 चाहिए था VRC में, और आ सकता था क्योंकि बाकी के मॉक्स में आ रहे थे. या -6 के बाद थोड़ा सा होता है कि अब क्या करना है, बट देन यू जस्ट बैक योर सेल्फ ऑन कि बाकी मॉक्स में अगर आ रहे हैं यू डोंट सिट विथ वन मॉक. एक मेरा बिलीफ है कि आफ्टर यू राइट लाइक विद द नंबर ऑफ मॉक्स आई हैव रिटन, योर एवरेज मार्क्स इन ऑल द मॉक्स इज योर फाइनल स्कोर. वही रेंज में आता है. इट वर्क फॉर मी इन 23, इट वर्क फॉर मी इन 24. गॉड. एंड योर केस. इन माई केस आई वॉज स्ट्रगलिंग विद DILR. वर्बल में मोस्ट ऑफ द टाइम आ जाता था, कभी कभी आउटलायर्स रहते हैं जैसे कम आ गया परसेंटाइल, और कभी कभी बहुत ज़्यादा भी आ गया कि एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो गई या जल्दी पढ़ लिया, तो आउटलायर्स वर्बल में. लेकिन DLR में मेरा कंसिस्टेंटली कम आ रहा था. मैं आई वॉज स्ट्रगलिंग टू सॉल्व अ सिंगल सेट, मतलब 50% तो ऐसा था मॉक्स जिसमें मैं एक सेट पूरी तरह बना ही नहीं पा रहा हूँ. तो कैसे किया आपने आपको लाइक मोटिवेट की नहीं उसके ऊपर मतलब सबसे पहले तो यार टेंशन तो थी DLR में, क्योंकि क्वांट में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी. क्वांट में तो कंसिस्टेंसी थी काफ़ी, जैसे जैसे पढ़ रहा था वैसे वैसे उस टॉपिक के स्कोर्स इंप्रूव हो रहे थे. DLR में डेफिनेटली जैसे आपने बोला एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट था, खुद से सॉल्व करता था, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे मैंने फिर ज़्यादा फोकस किया. और 2023 के लेवल पे तो यार पता ही था कितना डिफिकल्ट आ रहा है करके, तो लास्ट मोमेंट तक टेंशन था. लेकिन इस साल तो जो है पेपर में DLR ईजी हो गया, और तो इम्प्रूव तो हो गया, लेकिन तब भी तीनों में मेरा लोएस्ट सेक्शनल परसेंटाइल DLR में ही है. गॉट इट. एंड योर केस. मोटिवेशन तो सेल्फ मोटिवेशन ही था. अच्छा खासा वेल पेइंग जॉब छोड़ दिया था, सो अभी कैट तो निकालना ही था. सो दैट नॉट सक्सीडिंग वाज नॉट एन ऑप्शन. बट व्हाट हैपन वाज जुलाई में व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग द मॉक्स अराउंड 85 आ रहा था, नेक्स्ट मंथ 90 आ रहा था, फिर 95 आ रहा था. Marks started plateauing, around 95. So then I spoke to a mentor, why is it not going up? So he said, pehle a lot of people start taking mocks. Then only the serious ones start taking mocks. So the number of test taker decreases. So that is why you are not seeing an increase in percentile. But तुम rank देखो ना. If your rank is going down, Right. then you are obviously moving ahead. So Right. that was a very good advice that I got from a mentor. राइट एग्जैक्टली. एंड दिस हैपेंस एवरी ईयर. जब स्टार्ट करते हैं आई थिंक 30-40,000 आर अटेम्प्टिंग अ पर्टिकुलर मॉक, उसके बाद जब फाइनली 10,000 बचते हैं. बट द आइडिया इज कि ठीक है परसेंटाइल वैसे इंक्रीज नहीं होगा, बट बिकॉज सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, एंड आप जितना भी मॉक का परसेंटाइल है कैट में एक्सपेक्ट कर सकते हो उससे ज़्यादा ही आएगा, बिकॉज ओनली द सीरियस एस्पिरेंट्स आर अटेम्प्टिंग द मॉक्स, एंड कैट सब देते हैं. I stopped looking at mock scores. My mock score fell from 99.9 to 90. या वो इसलिए परसेंटाइल तो ठीक है, एक गिव्स यू अ काइंड ऑफ अ बेंचमार्क, Score. बट स्कोर्स आर मोर इम्पोर्टेंट कि स्कोर्स देखोगे इस स्कोर पे क्या आ सकता था कैट में. आई थिंक दैट विल हेल्प. मेरा तो कभी 99 शायद मुश्किल से 25 Mocks मॉक्स में नहीं 3-4 मॉक्स ही होगा जिसमें 99 आया या टच कर गया ऊपर गया, बाकी Yeah. सब में Makes 90 से 95 के बीच में था मेजोरिटी मॉक्स में. Same If you're as getting you. 90, if you're getting Same as you. 95 in mocks, I think it is you are almost headed towards 99 in cat. अगर 95 आ रहे हैं Definitely. With me the case was आ रहा मुझे था कॉन्फिडेंस लेके जाना था. हाँ. सो मेरा तो एवरेज ही 99.8 बनता था, राइट. तो दैट वाज द प्लान. मेक सेंस. एंड इंडिविजुअल सेक्शन स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं, लाइक अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी स्पेसिफिकली. Yeah. तो एक बार तीनों सेक्शन के बारे में फ्रॉम ऑल थ्री ऑफ यू, क्या स्ट्रैटेजीज था वर्बल के लिए इन शॉर्ट, DILR के लिए, एंड इन शॉर्ट कैसा अटेम्प्ट करने का क्या स्ट्रैटेजी था? So verbal I tried a lot, 2 RCs and VA. I tried a lot of strategies. What finally worked for me was start with 4 VA questions, skip para jumbles, skip para summaries. It takes a lot of time. So the other 4 VA and all the 4 RCs. With DILR, the plan was take 2 or 3 minutes, check all the sets, rank them on the basis कि क्या पहले करना है क्या बाद में करना है, एंड देन वही फॉर्मेट में करते जाओ. सो पेपर की डिफ़िकल्टी के हिसाब से एडजस्ट करने में ईजी हो जाता है. डिफ़िकल्ट हो कि ईजी हो पेपर, जितना होना है वही होगा.
एंड विथ क्वांट्स तो कोई स्ट्रैटेजी मतलब सारी लगा ली, फिर डिसाइड किया कोई स्ट्रैटेजी नहीं लगानी है, आता है 2.5 मिनट में हो सकता है करना है, अगर नहीं हो सकता आगे बढ़ना है। सेम क्वांट मेरा भी यही था कि सीक्वेंस वाइज जाऊंगा, जो हो रहा है बना लो उधर, एंड बट आई सजेस्ट अदर स्ट्रैटेजीज टू बिकॉज देयर इज नॉट अ वन साइज फिट्स ऑल पॉलिसी, definitely. बिकॉज आई थिंक योर क्वांट वाज आल्सो स्ट्रांग, राइट? My quant was हाँ, strong. जिसका क्वांट स्ट्रांग है उसके लिए स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, हाँ. बिकॉज आता है मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व ही करने वाले हैं, तो पता है अभी कर लो, हाँ, बट जिसका इतना स्ट्रांग नहीं होता है, फॉर देम आई सजेस्ट अदर स्ट्रैटेजीज एज वेल, मतलब लेवल वाइज जाओ कि अच्छा लेवल 1 में ये करना है, लेवल 2 लेवल 3 में, या फिर फेज 1 फेज 2 फेज 3 में ऐसे सॉल्व करो। आई थिंक फेज 1 फेज 2 कर सकते हैं, हाँ. 3 तक तो आई डोंट 3 तक तो टाइम नहीं बचेगा, अगर बच जाए, मतलब इजी पेपर आए तो मे बी। ये मैंने पहले ट्राई किया था फेज 1 2 3 बट आई थिंक मुझे भी वो सूट करता था ज़्यादा, सीक्वेंस वाइज जाना, एक एक क्वेश्चन करते रहो, मे बी बिकॉज ऑल्सो आई रियलाइज, मतलब मैं जब एडवाइस करने लगा कैट एस्पिरेंट्स को, दैट टाइम आई रियलाइज इट वर्क फॉर मी बिकॉज आई वाज स्ट्रॉन्ग इन क्वांट। Yeah. जिसका स्ट्रॉन्ग नहीं होता है क्वांट, उसके लिए ये स्ट्रैटेजी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, देन ही विल गेट एब्सोल्युटली लॉस्ट, बिकॉज उसको पता नहीं है कि अच्छा 2.5 मिनट्स में ये कर पाऊंगा कि नहीं, उसको 5 मिनट बाद पता चलता है अच्छा दिस क्वेश्चन दैट आई विल नॉट बी एबल टू सॉल्व, सो इसलिए दैट्स द थिंग। Right. एंड योर केस कैसा था? माय केस वर्बल में काफ़ी मॉक्स देने के बाद मैंने देखा कि स्कोर मैक्सिमाइज मेरा हो रहा है कि मैं दो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले लगा रहा हूँ, फिर काफ़ी जैसे रीडिंग इंटेंस हो जाती है 2 पैसेज के बाद, तो मैं ब्रेक के लिए वर्बल अटेम्प्ट करता हूँ, और वर्बल में जैसे पैरा समरी और जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन थे वो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे, और ऑड मैन आउट और जो पैरा जंबल थे, सबसे मुश्किल तो पैरा जंबल ही थे वो मेरे तो लिए, होते ही हैं। क्योंकि उसमें मतलब नेगेटिव तो नहीं था लेकिन एग्जैक्ट आंसर लाना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था, तो फिर मैं 4 अटेम्प्ट कर लेता था, 3-4 क्वेश्चन, फिर वापस से एक पैसेज अटेम्प्ट करता था कंप्लीटली, और बचे हुए टाइम में जितना हो सके उतना मैं करके 40 मिनट खत्म कर दिया था अपना। ओके, एंड और डीएलआर में इशू ये था कि सेट्स थे जो मैं खुद से कर सकता था, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था 40 मिनट में, तो इस बार मैंने स्ट्रेटेजी बनाई थी अगर ज़्यादा अटक गया तो 5 मिनट से ज़्यादा मैं मतलब अटक गया, मैं कुछ प्रोग्रेस हो नहीं रहा, मतलब जो प्रॉपर Complete stop. हाँ कॉन्फिडेंट प्रोग्रेस नहीं हो रहा कि इसमें मैं बराबर इस लाइन पे आगे बढ़ रहा हूँ, इस लाइन ऑफ थॉट पे, तो फिर उसको मैं 5 मिनट के बाद अटेम्प्ट नहीं करूँगा, बाद में अटेम्प्ट कर लूँगा। फिर मैं इस तरह से इस बार इस कैट अटेम्प्ट में ईजी भी आया था, तो मैं 2 सेट बना पाया था, 2 सेट अटेम्प्ट कर लिया था कम्प्लीटली। और क्वांट्स में कोई वही स्ट्रेटेजी थी कि जितना जल्दी हो सके, मतलब जहाँ पे नहीं अटक रहे हो तब तक करते रहो सॉल्व, ज़्यादा अटक रहे हो तो क्वेश्चन को स्किप कर दो। ओके, क्वांट में हमें मैक्सिमाइज करना है रिटर्न्स, Right. तो ऑलवेज गो फॉर इजी क्वेश्चंस इन क्वांट्स। एंड इन योर केस कैसा था अटेम्प्ट स्ट्रेटजी? वर्बल में तो वॉल्यूम ही था, सो आई न्यू सब ही सॉल्व करना है, बट आई वुड ऑब्वियसली स्टार्ट विद द इजियर आरसीज, बिकॉज स्टार्टिंग अगर अच्छा होता है तो इट गिव्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, यू नो पेपर इज गोइंग वेल, सो स्टार्टेड विद इजी आरसीज, सब आरसीज कंप्लीट कर लो, देन कंप्लीट द वीएस। DLR में मेरा स्ट्रैटेजी थोड़ा वियर्ड था, आई यूज टू स्पेंड ऑलमोस्ट 8 to 9 minutes जस्ट looking at all the sets, you know, like by the time I started of my first set I would know all the sets, क्या condition है, you know, क्या करना है वो भी पता था मुझे, so by the time I spent almost 10 minutes doing this, but by the time I started I knew क्या कैसे set बनेगा, so again, so first 10 minutes read through the set, then obviously easy होंगे तो 3 set करो, difficult होंगे तो 2 sets करो, so that was the strategy. एंड ऑर्डर बना लेते थे क्या, लाइक हाँ, ओके order बना दिस लेता सेट था। फर्स्ट सेकंड हाँ। सेट थर्ड सेट फोर्थ हाँ। सेट ऑर्डर हाँ। बना, हाँ। 10 मिनट्स आई थिंक हाँ, बट सफिशिएंट प्लानिंग में बहुत टाइम लगाता था, यू नो, लाइक सब पूरा पढ़ लेता था, सो देन वंस आई स्टार्टेड आई न्यू मैं अटकने नहीं वाला हूँ इसमें, बिकॉज उतना टाइम मुझे डाल बिकॉज दिया 10 मिनट्स दे दिया, मतलब 30 मिनट्स है, एंड यू न्यू कि अच्छा 2 सेट, यू हैड दैट इन माइंड, Yeah. 2 सेट करने, I had 15 it. मिनट इज इनफ, Enough. एंड मे बी इजी आ गया लास्ट में, तो इसलिए तो 3 सेट तीन बन कर गए, लो। 3-10 मिनट में पर हाँ, सेट। वैसा एंड था। क्वांट कौन्स में अगेन लाइक यू सेड Sequential. जितना हो रहा है करो, ठीक है, बिकॉज व्हेन आई वुड स्टार्ट अ क्वेश्चन ऑब्वियसली आई वाज स्ट्रॉन्ग एट क्वांट, सो आई न्यू कि बिफोर आई स्टार्टेड आई न्यू ये आंसर आने वाले नहीं आने वाला, शुड आई स्पेंड 2.5 minutes और नॉट, सो अगेन क्वांट्स वाज इजी, सो फर्स्ट पास यू नो जितने भी हुए कर लिए, then second pass में you know the question that I know but will take a bit more time, so you know 3.5-4 minutes, so second pass में वो करता था, by the time second pass would get over the time would get over, so you know Third one was मिल very जाएगा। optimized. ठीक है, मेक सेंस। तो आई थिंक कैट रिलेटेड वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, एंड मॉक एनालिसिस प्रॉब्ली इज वन थिंग दैट इज रिमेनिंग, बट आई वोंट गेट इनटू द डिटेल्स मॉक एनालिसिस, बट कितना टाइम देते थे मॉक के बाद एक एनालिसिस में on an average? एक रेंज है, सो इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड रफली 3 घंटे लगते थे, बिकॉज DLR सेट सारे सॉल्व नहीं होते थे। इन द लेटर फेज जब स्कोर बढ़ने लगे तो लेसर क्वेश्चंस टू कवर, सो 1.5 घंटे इसमें हो जाता था।
Got it. In your case? DLR में मुझे लगता था 1.5 घंटा, बाकी वर्बल में तो जो सेट्स बने उसमें तो ज़्यादा एनालाइज करना नहीं था. जिसमें रॉन्ग क्वेश्चन है उसको ज़रूर मैं देखता था कि जो सोल्यूशन है उसमें थॉट प्रोसेस किया है, इसमें थिंकिंग किया कि क्यों उसने ये ऑप्शन को एलिमिनेट किया और ये सही किया. तो बेसिकली मैं वर्बल में इतना देखता था, क्वांट मेरा जल्दी से एनालाइज हो जाता था क्योंकि जो नहीं क्वेश्चन किए थे उन्हीं को मैं देखता था कि उसके क्या क्या पॉसिबल सोल्यूशन है. क्वांट एंड DLR तो सेम रहता है, लेकिन मैं वर्बल में मतलब ऑलमोस्ट सजेस्ट करता हूँ कि जो सही भी हो गया ना उसको भी एक बार एनालाइज करो कि मे बी योर थिंकिंग पैटर्न एंड जो आंसर का थिंकिंग पैटर्न है शायद अलग हो. तो मे बी आंसर तुमने सही मार्क कर दिया बट हो सकता है लॉजिक बिल्कुल ही कुछ टैंजेंशियल था, तो इसलिए एक बार देख लो सही आंसर. सो दैट इज वन थिंग आई सजेस्ट, बट ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन एवरीवन. इन योर केस? मैं तो बहुत टाइम डालता था. आई यूज्ड टू स्पेंड 5 hours per mock, full length mock. And just on the analysis. Just on the analysis because ठीक है wrong है नहीं हुआ है वो तो देखना ही है. But I would also spend a lot of time on the question that I got right. You know, if I spend 2 minutes on this, how can I reduce it to 1.5 minutes? So that was something that I spent a lot of time on. You know, seeing like what is the strategy, कैसे कम कर सकते हैं. So that is why मतलब I went through all the 66 questions that we had mock में doing the analysis. Got it. And verbal में कुछ specifically ऐसा strategy? वर्बल में तो नहीं था. वर्बल तो चिल था. अच्छा. Got it. ठीक है, तो ये CAT preparation related था. अब आते हैं interview processes में. कौन से interview attend कर लिया अभी तक? अब तक मेजर में कोलकाता, कोझिकोड, शिलोंग, SP जैन and then the SIBM, SCM, HRD. Okay, got it. In your case अभी तक? I have attended Amritsar, Ahmedabad, रायपुर, कोझिकोड एंड कलकत्ता टुडे. तो 5 हो गए. Okay, 5 हो गए. In your case? लखनऊ, कोझिकोड, SP जैन, शिलोंग एंड रायपुर so far. Got it. तो कुछ interview experiences discuss करते हैं. I think IIM Calcutta we discussed and then we discussed about IIM Lucknow. But कुछ और any particular experience that you want to share जो मतलब maybe interesting हो या फिर थोड़े out of the box हो, anything, or maybe any experience you want to share. I'll give them a weird experience I had. It was IIM Kozhikode. 17 minutes the interview lasted. 8 minutes of it was the panelist convincing me I don't need an MBA. It was all over the place. So first it started, why do you want to do an MBA? I told I have a business, वगैरह वगैरह. They're like, oh, you have a business. Then go to your business. You don't need an MBA. I'm like, no, I want to understand the financial aspect. Okay, I justified that. They're like, okay, so after doing this, why will you not take a placement? I'm like, I might do it for 2 years, get my money back, and then I'll join my business. You're lying. You won't. You won't. Why would you leave a high-paying job? This is IIM Kozhikode, right? Yeah. Okay. I justified saying my business will pay more. Then why do you want to do a job? You are eating up a seat of someone else. We'll take someone from EWS. Yeah, I think IIM Kozhikode is known for these things. So I'll tell my experience of IIM Kozhikode. I had a 10 minutes interview. Okay. Not even 10 minutes, I think. Damn. And the first question, once I entered the interview room, the first question was, okay, what should we ask you? And obviously, I'm not prepared for that. I would be like, okay, sir, you can ask me anything that you want to. And that backfired or I don't know what. And they were like, okay, so tell me the exact population of India. And I was like, okay, I tried to guesstimate that, okay, this is how I can guesstimate and stuff. But they were like, no, I need the exact number. I'm like, okay, you can't answer this. Then let's go to the next question. What is the number of exact personnel in the Indian Army? If you answer this, you are in. If you don't answer, you are out. And I like again tried to guesstimate these many regiments. This is the border area. This many men you need. And I like, no, we want just one number. Give us that number. Obviously, I cannot answer that. Yeah. And that was the interview. And last they asked this, okay, what projects you have done? There was this one final year project. They spoke on it for 2 minutes, and that was the interview. That's it. And I don't know like what happened. They said that okay, we are done. No more questions. And they were like very rude. Yeah, I converted. That was a strange part. Probably because I think what I understood from that interview was obviously I had a high percentile and my VAT was very good. Probably those components helped, and I would have got an average score in the interview. Probably they wanted to put me under stress, but I was laughing all through the interview. I was just laughing or smiling throughout the interview. कि अच्छा ये चीज़ें हैं. Obviously I cannot answer this. And population वाले answer में I tried to be over smart as well. कि even if I tell you the correct answer, by the time you respond, the population would have changed. So it's not that I can give you the correct answer, the exact number anyway. So, but they were like, oh God, ये सब बेकार का बात हटाओ. And they started speaking in Hindi as well after a point of time. So it was a very chill interview, but I think what they were looking for is कि कितना disturb कर सकते हैं इसको.
एंड लास्ट में जब बोल दिया कि अच्छा हो गया, वी आर डन विद द इंटरव्यू, तो मे बी दे वर जस्ट चेकिंग द रिएक्शन, बट आई थिंक द परसेंटाइल, वैट स्कोर, वो सब हेल्प मी कन्वर्ट. अदरवाइज नॉलेज नहीं देखते आई थिंक दीज इंटरव्यूज में. इट्स मोर, नॉलेज इज वन पार्ट ऑफ इट, बट ऑल्सो इट्स मोर अबाउट अच्छा ये कोचेबल है कि नहीं, लर्न कर सकता है कि नहीं आगे जाके, एंड हाउ ही टेक्स थिंग्स. तो और कोई किसी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऐसा कुछ, अगर कोई जनरल इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी हो तो यू कैन शेयर एनी अदर. जनरली मुझे तो यार वाई MBA पे ज़्यादा ग्रिल कर रहे हैं, लाइक यू आर फ्रॉम अ हाई पेइंग गवर्नमेंट जॉब, सो वाई डू यू विश टू कम हियर. Even the Kozhikode, they told that whatever your technical knowledge is there, it will go to the waste. Yeah. If you do MBA, what's the requirement? You're already learning the skills. It will be a loss to the department also and your chemical engineering knowledge. Everyone has also. this weird experience. I'm Kozhikode, Yeah. you know. Everyone has this weird experience. I'm Kozhikode. They're known for this. तो आई वॉज जस्ट स्टिक विद जो आंसर प्रिपेयर किया था उसी पे स्टिक किया था. बाकी तो हाँ, आई एम अमृतसर पिक, ही टोल्ड मी दैट यू विल रिग्रेट डूइंग एन MBA after leaving government job. So Okay. these were the two experiences where they were just grilling Okay. on why MBA. और कोई टेक्निकल क्वेश्चन, स्पेशली सिंस यू आर कमिंग फ्रॉम कॉमर्स फील्ड, कोई टेक्निकल क्वेश्चंस ऐसे थे जो स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते? मे बी इट विल यूजफुल I ओनली फॉर think कॉमर्स एस्पिरेंट. in Lucknow, very unique question was asked. The professor asked me, the central banks are cutting the interest rates, so why are the treasury yields going up? So technically they're supposed to go down, but Got it. in practicality they're going up. So he was asking me, why is that happening? Okay. Obviously, I any, didn't I know think aspirant जो होंगे मे बी बीकॉम Similar lines. With Raipur, they asked me when the repo rate changes. So recently, on that day, repo rate had changed. When the repo rate changes, what is the impact on the currency rate? Okay. So they're very specific with that. I think Yeah. they want to know all the you should know all the connections की inflation, money क्या है? supply क्या connect चल रहा है. मेक सेंस. एंड इंजीनियरिंग में ऐसे कोई स्पेसिफिक टेक्निकल क्वेश्चन या कुछ? टेक्निकल इंजीनियरिंग में मुझे मैथ्स के बारे में ज़्यादातर पूछा है. अच्छा. जितना हो सके. कोझिकोड वाज लिटिल यूनिक. दे आस्क्ड अबाउट इकोनॉमिक्स, द GDP, what is GDP, what are the methods to calculate, what is stagflation, so what can be the possible causes of stagflation. So being from a technical background, it was unique to me because it's the only hand which has asked me till Right. now, as of now. मेक सेंस. एंड प्रिपरेशन फेज में मॉक इंटरव्यूज दिए थे? Yes. एवरीवन मॉक Yes, इंटरव्यूज yes. दिए थे? हाँ. ओके. एंड स्पेसिफिकली क्या कैसे प्रिपरेशन किया, क्या प्रिपरेशन किया था मोस्टली? व्हाट ऑल डिड यू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज? सबसे पहले तो क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो उसमें काफ़ी इशू आ रहा था. आप ही का इंटरव्यू देखा था मैंने. LinkedIn पे. तो ओवरऑल मेरा पूरा थीम उसमें था. बाकी जैसे स्कूल और इंटर का नाम मैंने हटा दिया था क्योंकि वर्क एक्स है, तो उसके हिसाब से थोड़ा मॉडिफिकेशन करके जनरल टेल मी अबाउट योरसेल्फ बता दिया था. अभी तक 2 IIM नहीं पूछा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, बाकी तो वर्क YMBA ही था. और उसमें भी मैंने काफ़ी वीडियोस देखो, उसमें भी आपका एक वीडियो था वर्क एक्स वालों के लिए. मतलब आपका उसी वीडियो में डिवाइडेड है, फ्रेशर्स को क्या बोलना है, वर्क एक्स वालों को क्या बोलना है. तो उसमें वर्क एक्स पार्ट के लिए मैंने देखा था अबाउट स्किल अपग्रेडेशन, एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, डाइवर्स स्किल्स. तो उसके हिसाब से मैंने एक आंसर फ्रेम कर दिया था. तो मोस्टली सारे IIM में वही आंसर यूज़ करना. हाँ, दैट इज ट्रू. So I think one is academics, so जो basic होता है एटलीस्ट फॉर कॉमर्स पीपल, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, वो तो एकदम बेसिक है, वो तो आना ही चाहिए. सेकेंड वन इज़ योर वर्क एक्स पता होना चाहिए क्या किया है इन द पास्ट, व्हाट प्रोजेक्ट्स यू वर्कड ऑन, हाउ इज़ द इंडस्ट्री दैट यू आर वर्किंग ऑन, वो पता होना चाहिए. बेसिक बिहेवियरल क्वेश्चंस आना चाहिए. टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई MBA, व्हाट आर योर 5 year 10 year प्लान्स, वो थोड़े बेसिक पता होना चाहिए. And apart from that, current affairs, so I have a friends group, and we keep discussing what is going on in the economy, what is going on in the world. So current affairs, so speaking to friends that I made during this CAT journey, उससे ही हो जाता है. Got it. And anything specific in your case? For me, it was more about give more and more mock interviews. So what worked for me was in the early Jan, I got my date 23rd February is gonna be my Calcutta, and then it's gonna be my best interview then. बस सारे कॉल्स सब तक आउट हो चुके थे. So I made sure one thing, जितने इंटरव्यूज मिल रहे हैं सब Jan Feb. कैलकाता के वाले जितने हो सके सारे ले लो. Got it. बिकॉज कैलकाता एंड लखनऊ इज जो मेरा फोकस था ये कन्वर्ट करना है सबसे पहले. Right. लखनऊ में ऑप्शन मिला नहीं, वो 21 जैन को दे दिया. आई लैंडेड इन इंडिया 20 जैन और 21 का वो था तो कोई ऑप्शन था नहीं. Got it. सो एक इंटरव्यू से अलग अलग एक्सपीरियंस मिला. फ्रॉम लखनऊ आई लर्न हर इंटरव्यू का टाइमिंग फिक्स है. वो दिमाग में लेके बैठे कि 30 मिनट से ज़्यादा तो खींच नहीं सकते. हाँ. तो अगर तुमने एक मेजर चंक अपना टाइम निकाल दिया, फॉर्मेट वर्कड आउट, बिजनेस पे बात करो. Right. उनको कुछ पता नहीं, मैं झूठ बोलूँ वो पकड़ नहीं सकता. तो इससे अच्छा हम क्या है टॉपिक. बट बिल करेंगे.
ग्रिल कहाँ से करेंगे? मतलब थियोरेटिकल में जाएंगे, थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स में जा सकते हैं, बट Example देता हूँ। दे विल गिव यू मोर टाइम. मेरा बिजनेस है डायमंड्स का. सो द फर्स्ट थिंग आई एम प्रीटी श्योर दे आस्क मी अबाउट लैब ग्रोन डायमंड्स. सब वही कर रहे हैं, हर इंटरव्यू में वही चलता है. तो पता है कि 5-7-10 मिनट का चंक तो इसमें निकालना ही निकालना है. फिर मैंने एसपी के इंटरव्यूज़ दिए. टेल मी अबाउट योरसेल्फ काफ़ी रिफाइन हो गया. सो मेरा एक फॉर्मूला है टेल मी अबाउट योरसेल्फ का. सबसे पहला आई स्टार्ट विथ माई 10th एंड ग्रेजुएशन, क्योंकि टॉप किया था तब. और वो टॉपर टैग वो रह जाता है उनके दिमाग में. उसके बाद MBA काफ़ी जल्दी डिसाइड किया. सो वन थिंग दैट सेपरेट्स मी फ्रॉम बीटेक इज़ वो लास्ट ईयर में शायद डिसाइड करते कि अब MBA करना है. मैंने 10th में डिसाइड किया, इसलिए मैंने एजुकेशन भी वही परस्यू किया. BMS है. राइट. एंड देन फ्रेमवर्क ऐसा चलता है. 5 साल में क्या किया? स्किल्स सीखे. स्किल्स क्यों सीखे? MBA करना है. और स्किल्स कौन से सीखे? कम्युनिकेशन सीखा, इसलिए ये इवेंट जीता, ये ऑर्गेनाइज किया. गैप ईयर जस्टिफाई करने के लिए टाइम मैनेजमेंट सीखा. और फिर ग्रेजुएशन के बाद इतना सारा एक साथ किया. तो एक फ्रेमवर्क ऐसा होता है ना उनके दिमाग में, ऐसा हाँ इसको स्किल्स आती है और सारा डिटेल एक साथ उनको पहुंच जाता है. मेक सेंस. एंड आई थिंक बहुत सिमिलरली मैं ये भी जो टेल मी अबाउट योरसेल्फ बोलता हूँ. बस एक चीज़ बोलता हूँ कि स्टार्टअप अच्छा कर लो, बीच में जो पॉइंट्स है ना जो लगाना करना पड़ेगा बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट, वो घुसा दो. एंड फिर अच्छे नोट में करो जिसमें आपको क्वेश्चंस चाहिए. बिकॉज प्रोफेसर्स को लास्ट में जो पूछ रहा था ना, मे बी बिजनेस के बारे में अगर लास्ट में बात करोगे ना, उनको वो ज़्यादा याद रहेगा कि अच्छा बिजनेस ये सब इसके बारे में बात किया था, लेट्स एक फॉलोअप क्वेश्चन डाल देते हैं उस पर. तो जिस पे भी क्वेश्चन चाहिए उसको या तो ऊपर रख लो या तो लास्ट में रख लो. बीच में सारे इररिलेवेंट पॉइंट्स या फिर जिस पे नहीं बात करना है बट इंपॉर्टेंट है एड्रेस करना, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, वो बीच में घुसा दो. सो फार मेरे जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं मुझे कंप्लीट ही नहीं करने दिया. सो द सेकंड दे फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग और हुक इन योर टेल मी अबाउट योरसेल्फ, दे विल स्टॉप यू. दे ये बताओ मुझे. This is also मेरा भी कभी interesting. कंप्लीट नहीं हुआ. टेल मी अबाउट Oh, yeah, विथ this- मी द केस हैज बीन कि उनके मुंह पे दिख जाता है. सर एक वाइल यू आर स्पीकिंग और टेल मी अबाउट योरसेल्फ, उनके मुंह पे एक स्माइल आता है. वो पोकर फेस वाले मुझे अब तक तो नहीं मिले. हाँ. तो मुंह पे दिखाता है कि भाई टेल मी अबाउट योरसेल्फ कंप्लीट करो. पूछना तो इन्होंने इस पे ही है. मतलब उनको शायद वो दिख जाता है. अच्छा वो नोट डाउन करते रहते हैं whenever they get a point कि अच्छा this is an interesting thing, let's start on this. हाँ, जैसे IMA प्रोफेसर थे, वो मोस्टली अपने iPad पे देख रहे थे जब मैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ को बता रहा था, जब दूसरे प्रोफेसर ने पूछा. तो उसमें शायद एक कुछ चीज़ मैंने क्लियरली बोली होगी नहीं होगी तो उनको सुना ही नहीं दिया. तो उन्होंने बीच में पूछ के वापस से इंटरप्ट करके रिवाइंड करने बोला कि तुमने क्या बोला करके. तो डेफिनेटली वो लोग ध्यान नहीं देते लेकिन सुनते जरूर है वो. हाँ नहीं वो आई एम अहमदाबाद आई हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस. वो iPad पे देखते हैं बट सब कुछ सुनते हैं. सो दिस प्रोफेसर जो ही वाज ट्राइंग टू लाइक मतलब पुट मी कि आई एम नॉट लिसनिंग, द अदर प्रोफेसर यू कैन आस्क क्वेश्चंस. सो ही वाज आल्सो लुकिंग इन हिज iPad ओनली. वो iPad पे देख रहे हैं बट मैं लाइक आई कैन ऑब्वियसली मैं दोनों की तरफ देख रहा हूँ. सो आई कैन सी बीच बीच में वो आंख उठा रहे हैं ऐसे. व्हेनेवर समथिंग कुछ इंटरेस्टिंग होता है ना तो वो बीच में ऐसे आंख उठा लेते हैं. सो लाइक trying to act casual but he's listening to each and every point. So वो रहता है इसमें. They just want to see your reaction to that. You Yeah. know, how are you reacting? अगर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ तो हाँ, you know ध्यान नहीं दे easy रहा. Addressing easy, you. yeah. हाँ. So I think best strategy होता है actually don't ignore him as well. मतलब I could have spoken to the other professor as well but मैं दोनों की तरफ ही देख रहा हूँ. Like even if he's not interested but मैं एक दो बार देख ले रहा हूँ बीच में थोड़ा देखना ही है. हाँ थोड़ी देर के लिए. कि which I am interested in you as well if you even if you are not interested. So okay, insightful conversation. I think we have covered almost everything. But just any last advice or any tip you have for CAT aspirants who would be going for CAT attempts a year later or so? Any final tips from your end, and then we can close. I think. Concern. So one thing I've seen, so I have a lot of friends preparing for CAT. So one thing I've seen is that people give up on the way. So I might be an extreme case जिसने शायद कोई रिस्क नहीं लेना इसलिए इतना पढ़ लिया. I also seen people जिन्होंने 4 महीने में 97, 98 स्कोर किया है. मतलब इट्स जो लास्ट मोमेंट तक पढ़ रहे हैं उन सबके स्कोर आ रहे हैं. Right. सो हाफ वे पे गिव अप कर देना कि नहीं होगा, एनमैट स्नैप पे फोकस कर लेते हैं. बिकॉज द सर्कल आईक्राफ्ट में बहुत ज़्यादा ये कॉमन है कि नहीं हो रहा है कैट छोड़ो एनमैट स्नैप कर लेंगे. Right. सो मे बी अगर लास्ट मोमेंट तक पढ़ते रहेंगे, कंसिस्टेंसी रहेगा तो स्कोर में कन्वर्ट हो ही रहा है. और मेजॉरिटी मैंने सबका ये देखा है. हाँ, very important as you said कि यार तुम like you gave almost more than a year as well. So but अगर देखो तो people have converted in 3-4 months as well. It's more about people who end the journey rather than people who have started the journey. Maybe 12 months में भी काफ़ी लोग start करिए, 4-5 months में they just left. There are situations like this. And you were saying something? Yeah, I think conceptual clarity is very important, especially for quants. You know, not just memorizing the formulas, but also understanding why you are applying this formula. So I think that is also very important.
And another thing is, I know a lot of friends who are getting 100, 110 marks in the mocks, but actual CAT they got a lot less marks. So again, the mental aspect is also very important. You know, performing your best on that CAT ka din. So मेरा CAT में what happened was, I got my registration. तो मेरे सेंटर का registration जो होता है, fingerprinting होता है, registration होता है, that went down. So I did not get my seat up till 8:40. I was in slot 1, so 8:30 को वो खत्म होना चाहिए था. It adds a lot of Yeah. pressure on the day. So अगर हो it जाता added है. a lot of pressure. I did my first RC. I spent almost 10 minutes. My usual was 5 minutes. I spent 10 minutes on the first RC. First question mark किया. I was confused. You know, ये तो गलत है. Second, ये तो गलत है. Third, ये तो गलत RC में ऐसे ही है. होता So by the time 10 minutes were done, I was like, you know, like this attempt is screwed. You know, like 10 minutes गए, एक भी क्वेश्चन सही नहीं. So I was like, you know, let's just complete the paper. अभी 1 hour 50 minutes है तो complete कर लेते हैं. And I just did as many questions as I could and आ गया score. So, you know, not having that pressure on me after the first 10 minutes helped a lot. राइट एक्चुअली एग्जाम के दिन मेंटल प्रेशर जज नहीं करना चाहिए क्या हुआ है बिकॉज मुझे भी याद है मैं कैट जब 18 दे के आया था आई वाज लाइक मैं जा रहा हूँ वापस जॉब में आई घर आके बोल दिया मैं जॉब में जा रहा हूँ वापस नहीं हो पाएगा क्योंकि अटेम्प्ट्स कम Exact थे same बट वो thing. क्वांट बहुत डिफिकल्ट आ गया था Exact same thing. मैं 34 में आई थिंक 30 अटेम्प्ट कर लेता था क्वांट में उस साल मैंने 21 अटेम्प्ट किए थे सो इतना बड़ा फॉल एंड आई वाज लाइक 21 अटेम्प्ट में कैसे क्रैक हो सकता है इम्पॉसिबल है बट द आइडिया वाज इतना डिफिकल्ट पेपर था कि 21 में आई गॉट लाइक मोर परसेंटाइल कंपेयर टू लास्ट ईयर सो वो जज नहीं कर सकते हाँ कुछ और ऐड कर सकते हैं एक टिप जैसे लास्ट मोमेंट है हैव अ सेल्फ बिलीफ अपने आप पर लास्ट तक बिलीव करो 2 हफ्ते पहले मैंने एक मॉक दिया था जहाँ पे क्वांट में मेरे सिर्फ 2 ही आंसर सही हुए थे जिसको मैं मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंट था पूरे जर्नी के थ्रू लेकिन सेल्फ बिलीफ हमेशा रहना चाहिए मॉक में हमेशा कम आ भी सकते हैं तो यू हैव टू have a belief in yourself and consistency. That is the 2 things which I would advise the aspirants. Thank you so much Mokshesh, Vishwaraj and Prateek for doing this. I know obviously you're going to appear for different interviews as well, so all the best for your rest of the interviews that you're going to attempt, and I'm pretty sure this episode is going to be very very useful for all CAT aspirants जो भी CAT 25 26 देने वाले हैं. It will be very very useful for them. So thank you for taking out time for this.